everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anagha representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about the upcoming release of the Tally Prime, that is release 4. So this some basic new features आज हम उनको present करेंगे. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now moving ahead to the today's topic. So now the speakers are here. So the presentation will be conducted by Ankita. So Ankita, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Tarun. So Tarun, are you here? Yes, ma'am. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available. Thank you. Hearty welcome all of you. Ankita and Tarun to move ahead with your presentation. Yes, ma'am. Thank you. So, hello, good evening, everyone. Myself, Ankita, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited, on behalf of the management and all team of Rajlakshmi Solution. I would like to welcome all the participants and moving ahead to present our today's topic. So, our today's topic is Tally Prime Release 4.0 beta version. So, coming to the next point. Share invoices and reminder letters to your parties via WhatsApp and get responses from their WhatsApp. Your parties also get the flexibility to make instant payments as well. हम जब बिजनेस में अगर कुछ पार्टीज है हमको WhatsApp करना होता है तो हम इजीली अभी 4.0 से WhatsApp कर सकते हैं और उनके तरफ से इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं. So coming to the next point, securely share documents. You can send digitally signed financial statements टू द स्टेक होल्डर ऑन व्हाट्सएप. हमें जो भी अपना मतलब डॉक्यूमेंट अगर शेयर करना है किसी कस्टमर को तो हम डायरेक्टली अभी टैली प्राइम से डिजिटल सिग्नेचर स्टैम्प करके हम भेज सकते हैं. पर्सनलाइज कम्युनिकेशन allows to communicate directly with customers which enable personalized interaction, enhancing customer engagement and building stronger relationship. इन सब पॉइंट्स को हम मुद्दे रख के हम पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं कस्टमर के साथ. ब्रांडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन. The display's name allows businesses to use their recognized brand name, making it easier for customers to identify the sender और द मैसेज प्रमोटिंग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन. अभी हम अगर एडवर्टीजमेंट करना है हमारे खुद के नेम का या फिर कंपनी के नेम का जो एक ब्रांड नेम जैसे कि दिखना चाहिए बिल में या फिर हमें कुछ टैम्पलेट भेजना है सैंपल भेजना है तो हम अभी इजीली टैली प्राइम से वो भेज सकते हैं. जैसे कि हमें अभी कंपनी का नाम ज्वाइन करना है तो हमें डिजिटल सिग्नेचर और या फिर डोंगल ज्वाइन करना पड़ेगा तो हम डायरेक्टली अभी यहाँ से भेज सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, minimal user intervention, effortlessly import masters and transaction from excel. अभी जो भी हमें excel अगर import करना है masters import करने तो हम वो easily import कर सकते हैं. ease of use, flexibility to use any of the default templates, sample excel files. अगर हमें excel फाइल का कुछ template या फिर sample भेजना है कस्टमर को तो वो भी easily available है अभी. seamless mapping excel spreadsheet, take data curated in any excel workbook and map it to field in Tally Prime regardless of the format or order. हमें कुछ भी फॉर्मेट या फिर फील्ड ज्वाइन करनी है टैली में तो हम एक्सेल शीट से पूरा ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब टैली प्राइम से वो भी अभी फीचर हमें अनेबल हुआ है. Ensure that sanity and consistency. Logs are created while importing to identify errors if any that occurred during import. हम जब भी एक्सेल इंपोर्ट करते हैं तभी हमें कुछ एरर अगर ऐसा कुछ भी दिखता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता है हमें. सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Smarter decision making, quick access to critical business data for faster decision making. Unlock additional time, instantly view business insights, saving a lot of time. Proactive compliance, stay compliant with a quick overview of ITC. Manage your business health. Stay in control of your business with easy manage, view, cash flows, and many more. Tailored and elaborate. Completely customizable dashboard with the ability to drill down, modify, and save views.
Trends and comparisons. Using graphs, you can quickly and easily analyze large volumes of data. अभी जब हम 4.0 ये बीटा वर्जन एक्सपांड हुआ है, तो उसमें हम स्मार्टर डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग कम हो रहा है हमें, और प्रोएक्टिवली हम जब आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग हमारा कम हो रहा है। और जब भी हमें अभी कोई भी डाटा एनालाइज करना है तो वो हम ग्राफ्स थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, मतलब जो भी टाइम कंज्यूमिंग है वो हमें लेस टाइम में हम काम कर सकते हैं। So coming to the next slide. So thank you. Now it's time for the live demo. I request to Tarun proceed for the live demo session. Thank you. Hello, good evening, everyone. My name is Tarun, and I am representing ourselves on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So let's get started. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली प्राइम का जो अपकमिंग रिलीज है आपका टैली प्राइम 4.0 उसका बीटा वर्जन आ गया है, जिसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर आप अपनी कंपनी की स्टैंडर्ड पोजीशंस देख सकते हैं कि अभी आपका कंपनी में क्या पोजीशन चल रहा है, राइट। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपकी, आप उस रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं, देखिए डिफरेंट तरीके से। अब यहाँ पर जैसे कि गेटवे ऑफ टैली पे ही आपको यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है डैशबोर्ड का। हम यहाँ पर जाते हैं तो ये स्क्रीन कुछ इस तरीके से विजिबल होगा आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे फर्स्ट जो आपको कॉलम देखने को मिल रहा है वो है सेल्स ट्रेंड का, जिसके अंदर हमारी ओवरऑल सेल्स रिप्रेजेंट की गई है। तो अभी यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं इन सभी को टाइल्स बोला जाता है। तो टाइल्स के अंदर ये आप देख रहे हैं जो कर्सर मूव हो रहा है पॉइंटर, इसके अंदर आपको पॉइंट बाय पॉइंट जितना भी जो भी मंथ का आपका स्टैंडर्ड चल रहा है सेल्स का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर कुछ एडवांस ऑप्शंस भी दिए गए हैं जो कि राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड। एक्सपेंड टाइल, अब सपोज करिए अभी हमारा कर्सर जो है वो सेल्स ट्रेंड पे है, मैं यहाँ पर ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो कि आपको बेटर वे में आपको देखने को मिलेगा। एंड अभी यहाँ पर देखिए अभी स्क्रीन पे जो रिपोर्ट्स ओपन है, अगर आप इससे डिफरेंट अगर आप कोई और रिपोर्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए ऐड टाइल आप कर सकते हैं। ऑल्ट ए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ऐड टाइल में। अब जैसे हम यहाँ पर जाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर मैं यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर एक आपको कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर एक टाइल आ गया है बॉटम साइड में, यहाँ पर आपको पीरियड के अकॉर्डिंगली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आ गया है। अब अगर मुझे यहाँ पर मैं इस पे एंटर करता हूँ तो मैं डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट्स पे व्यू हो जाऊंगा। तो यार ये क्विकली वे है जिससे कि आप अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। अब यहाँ पर जैसे हमने ऐड किया है ऐसे ही इसको रिमूव भी कर सकते हैं हम, ऑल्ट डी जिसके लिए शॉर्टकट किया है। तो अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो वो रिपोर्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कॉन्फ़िगर के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि मैं बताता हूँ आपको। ऑल्ट सी किया, ऑल्ट सी करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से जिस भी टाइल पे आपका कर्सर रहेगा तो उस टाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ऑल्ट सी करना है। अब सपोज करिए कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे अभी कर्सर है हमारा और हम यहाँ पर करते हैं ऑल्ट सी करने के बाद ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से खुलेगी आपकी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ टाइल, जो कि नाम है आपका टाइल का। इसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर ग्रुप। अब ग्रुप में सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिया बैंक अकाउंट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है शो नेट फ्लो, शो इनफ्लो, आउटफ्लो। अब मैं अपने अकॉर्डिंगली येस और नो कर सकता हूँ, मेरे को जिस वे में आपको रिपोर्ट्स व्यू करनी है। अब यहाँ पर आता है डिस्प्ले टाइप में 3 चीज़ें दी गई हैं। एक आता है डाटा ओनली, जिसमें कि आपकी जो फिगर्स आएंगी वो अमाउंट के उसमें आएंगी। सेकंड चीज़ आती है आपका ग्राफ। अगर मैं इसको ग्राफ पे करता हूँ तो देखिए किस तरीके से आएगा। ये आपका ग्राफ टाइप में आ रहे हैं, 2 तरीके के ग्राफ होते हैं आपके, एक बार होता है और एक लाइन होता है। अगर मैं इसको बार के थ्रू व्यू करता हूँ तो ये देखिए किस तरीके से व्यू होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा आपका। अब मैं दोबारा ऑल्ट सी करता हूँ, ये अगर हम इसको लाइन के थ्रू देखते हैं तो ये लाइन के थ्रू आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, येस और नो।
जो भी रिपोर्ट रहेगी आपकी, अब सेल्स में जैसे हम करते हैं ऑल्ट सी, यहाँ पर सेल्स ट्रेंड, अब ये आ गया नाम आपका टाइल का। उसके बाद यहाँ आता है पीरियोडिसिटी। तो ये जो फंक्शंस आपके आएंगे, कॉन्फ़िगरेशंस जो आएंगी आपकी, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे आप बैलेंस शीट की कुछ ग्रुप्स देखना चाहते हैं, सन्डे डेटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स, या कैश बुक, बैंक बुक, जो भी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी। अब पीरियोडिसिटी में यहाँ पर जैसे मंथली आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट मंथली आ रहा है। अब सपोज करिए मुझे क्वार्टरली देखना है तो मैं क्वार्टरली ले लूंगा। अब ये करने के बाद ग्राफ एंड लाइन, थर्ड ऑप्शन है डेटा एंड ग्राफ का। अब डेटा एंड ग्राफ अगर दोनों देखना है तो वो भी देख सकते हैं हम। अब सपोज करिए लाइन के थ्रू अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स आपको ऊपर मिल जाएंगी जहां पर आप फिगर्स देख सकते हैं जो भी पर्टिकुलर मंथ है आपका। अब ये करने के बाद यहाँ नीचे में आपका ग्राफ आ रहा है। अब इसको अगर एक्सपेंड करके देखना है तो एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, जिसके लिए ऑल्ट वी आपका शॉर्टकट की रहेगा। और इसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ कॉर्नर में आप देख रहे हैं F12 की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका शो वर्टिकल डैशबोर्ड। वर्टिकल डैशबोर्ड ये आपका, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से व्यू होगा आपको। अगर आपकी डेटा अगर आपका ज़्यादा है और उसको अगर आपको डीपली वे में देखना है तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। और अगर आप इसको टैप करेंगे तो टैप करने से आपका रिपोर्ट नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलता रहेगा इस तरीके से। अब अगर मैं इस स्क्रीन से बाहर आता हूँ, यहाँ नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट स्टाइल और प्रीवियस स्टाइल, जो कि आप कर सकते हैं। ये आपको कंट्रोल के साथ में प्रेस करना होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉपअप आता है लास्ट में। ये जो व्यू अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस विल क्लोज द रिपोर्ट विदाउट रिटेनिंग द कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंजेस यू माइट हैव डन। डू यू वांट टू क्विट द व्यू ऑफ रिपोर्ट विदाउट सेविंग इट। तो ये आपका चॉइस है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। ये है आपका डैशबोर्ड का फीचर, जिसके लिए आप अपनी पूरी फर्म, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड बाय पोजीशन देखना चाहते हैं कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फर्म में अभी क्या पोजीशन चल रही है, तो वो आप देख सकते हैं, क्विकली एनालाइज कर सकते हैं कि आपके नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि आपने पहले देखा होगा पहले की अभी तक की जो रिलीज है आपकी, तो उसके अंदर हम एक्सेल से डेटा इंपोर्ट नहीं कर पाते थे। बट अब यहाँ पर एक्सेल से इंपोर्ट करने के लिए आपको कोई भी एड ऑन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको डिफॉल्ट फीचर मिलने वाला है। अब यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे ही ऑल्ट ओ मैं करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। मैनेज का एक ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आप आएंगे, यहाँ पर आपको मैपिंग टेम्पलेट आ रहा है और यहाँ पर आता है सैंपल एक्सेल फाइल। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर सैंपल एक्सेल फाइल में। ये दो तरीके की दिए गए हैं, क्योंकि आपको जैसे मास्टर्स अगर इंपोर्ट करने हैं तो सबसे पहले मास्टर्स इंपोर्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन्स बाद में आपकी इंपोर्ट होंगी। तो मास्टर्स के लिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी एक फाइल जनरेट होगी जो कि आपकी इस तरीके की होगी, जिसके अंदर यहाँ नीचे की तरफ आपको टैब देखने को मिलेंगे, ये इस तरीके के। तो ये आपकी सारी शीट्स आ रही हैं जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, और इसको आप रीड भी देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड है आपका एक्सेल शीट, जिसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर आता है लेजर। आप सपोज करिए आपको लेजर्स इंपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जितने भी कॉलम्स दिए गए हैं अपने अकॉर्डिंगली इसमें जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाई हुई है। फिर ऐसे ही ग्रुप आता है आपका, ग्रुप की इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। फिर यहाँ पर लास्ट सेकंड बाय आपका आता है यहाँ पर कॉस्ट सेंटर, फिर ऐसे ही कॉस्ट सेंटर के बारे में भी बताया गया है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी आप कर सकेंगे अपकमिंग रिलीज में। अब ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजैक्शंस के केस में क्या होगा। जब आप ट्रांजैक्शंस करने जाएंगे तो ट्रांजैक्शंस की जो फाइल होगी आपकी वो कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट होगी, जिसके लिए आप ये ऑल, मैं फाइल दिखा देता हूँ आपको। अकाउंटिंग के नाम से फाइल आपकी जनरेट होगी, नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये जो फाइल जनरेट होगी, ये फाइल, इस फाइल का ये पर्पज़ है जैसे कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स है
परचेज की, सेल्स की, किसी भी वाउचर टाइप की, तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको डाटा मेंटेन करना होगा, वो भी इसी फॉर्मेट में जो टैली का डिफॉल्ट फॉर्मेट दिया हुआ है। अब इस फॉर्मेट में यहाँ पर वाउचर डेट है, फिर यहाँ पर वाउचर टाइप नेम आता है जो कि आपको स्पेसिफाई करना है, सेल्स, परचेज, जर्नल, रिसीप्ट, पेमेंट, जो भी रहेगा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपका वाउचर नंबर आ जाएगा। ये करने के बाद सप्लायर की डिटेल्स, अगर एड्रेस है तो जो भी डिटेल्स रहेंगी आपकी, आप वो सारी फुलफिल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट होंगी। ये इस तरीके से आपको, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं जिसको बोल्ड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, इसके अंदर आपको डिटेल्स फिलअप जरूर करनी है। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इंपोर्ट किस तरीके से होंगी। ऑल्ट ओ करने के बाद मैं मास्टर्स में जाना है, जैसे कि पहले अभी हम करते आ रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस, तो ये वैसे ही है। जैसे एक्सएमएल फाइल होती है वैसे ही ये भी होती है। अब इसमें क्या करना है, फाइल फॉर्मेट में आप ले लेंगे यहाँ पर एक्सेल लेने के बाद ये आपसे पूछेगा लोकेशन, तो लोकेशन ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ये अभी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब यहाँ पर आता है फाइल टू एक्सपोर्ट, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ऑल मास्टर, जो फाइल रहेगा आपका आपको वो सेलेक्ट करना है। वो करने के बाद अब यहाँ पूछता है वर्कशीट का नाम, तो वर्कशीट का नाम यहाँ पर देख रहे हैं लेजर लिया हुआ है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर लेजर। तो जो भी आपको इंपोर्ट करना रहेगा आप वो ले लेंगे यहाँ पर। अगर आपको यूनिट इंपोर्ट करना है तो आप यूनिट लेंगे, अगर आप ग्रुप करना है तो आप ग्रुप ले लेंगे, अगर आपको कोई आइटम इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर आइटम ले लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पेरोल से के रिगार्डिंग भी है, पेरोल्स के भी मास्टर्स आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ लेजर लेने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन है मैपिंग टेम्पलेट में मैंने यहाँ पर लिया है डिफॉल्ट टेम्पलेट लेने के बाद अब यहाँ आता है टाइप ऑफ मास्टर, मैं यहाँ ले लूंगा लेजर। राइट, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 ऑप्शन आपके पहले की रिलीज में भी आते हैं, सेम वैसे ही वर्किंग रहेगा इनका। अब यहाँ पर मैंने कर दिया है मॉडिफाई विद न्यू डाटा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस इंपोर्ट समरी, प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, तो इसका आप प्रीव्यू भी देख सकेंगे कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो ये नंबर ऑफ काउंट आपको बता दिया जाएगा इससे। अब यहाँ आता है बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, इसका मतलब ये है कि पहले की रिलीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये फीचर पहले नहीं दिया हुआ था, क्योंकि हम जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे तो उस टाइम पे बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं था, हमें अपने अकॉर्डिंगली ही बैकअप लेना होता था। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है कि हैंड टू हैंड आप इसी स्क्रीन से बैकअप भी ले सकते हैं, तो ये आपका चॉइस रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी बैकअप ले रखा है तो इसको नो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको येस कर सकते हैं। अब मैंने इसको नो कर दिया है, अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ, तो कंट्रोल ए करने के बाद ये कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी आपके पास, जहां पर आ रहा है इंपोर्ट समरी फॉर लेजर्स। अब यहाँ पर ये आपको पर्टिकुलर्स के नीचे आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपके ग्रुप्स हैं वो आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है रॉ, ये पूरी डिटेल्स आ रही है आपकी एक्सेल की। अब इसके बाद अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो ये, अगर कोई एरर होगा तो वो एरर यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको इसको डमी कंपनी में करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मास्टर्स थे, तो उस केस में एरर आएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम जाते हैं मास्टर्स में, ऑल मास्टर किया, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगी। मैं यहाँ पर करता हूँ इसको इंपोर्ट। राइट, अब ये आ रहा है इंपोर्ट सक्सेसफुली। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर स्टैटिक्स में हम गए, यहाँ पर आपको लेजर्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको इसको मल्टी ऑल्टर यहाँ से क्लियर करता हूँ। ये कुछ इस टाइप से हैं। अब हम इसकी फिगर्स भी मैच कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर डाला हुआ है एज अ ओपनिंग बैलेंस। तो हमने जो भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर फिलअप किया हुआ होगा, यही चीज़ आपकी सेम यहाँ पर आएगी। राइट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेजर आ रहा है आपका, जो कि क्रिएटेड है बैंक अकाउंट के अंदर, और ये आ रहा है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख से। फिर यहाँ पर कैश तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है। अब यहाँ देखिए पैकिंग चार्जेस आपका इनडायरेक्ट इनकम, इसको भी चेक कर लेते हैं।
पैकिंग चार्जेस आपका इनडायरेक्ट इनकम। तो ये इस तरीके से रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसका ग्रुपिंग क्या रहने वाला है, ये आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वही टैली के अंदर फीड अप होगा। तो ये माइनर सी चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है अपने अकॉर्डिंग। अब ये हमारे जितने भी लेजर्स हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस के साथ यहाँ पर आ गए हैं। अब ऐसे ही आपको ट्रांजैक्शंस भी करनी है। ट्रांजैक्शंस करने के लिए सेम प्रोसीजर है, आपको ऑल्ट ओ करना है। ऑल्ट ओ करने के बाद आप ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे। ट्रांजैक्शंस पे जाने के बाद आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। फाइल रहेगी आपकी अकाउंटिंग वाउचर्स, या जो भी नाम रहेगा, जिस नाम से आपने बनाई है फाइल उस नाम से होगी। यहाँ पर रहेगा मैपिंग टैबनेट पे आपका डिफॉल्ट रहेगा, आप ये डिफॉल्ट लेंगे यहाँ पर। फिर आप इसको कंट्रोल ए करते हैं तो ये इस तरीके से दिखाएगा आपको सेल्स, रिसीप्ट, जनरल। तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ मेंशन करेंगे वही डिटेल्स आपकी टैली के अंदर मेंशन होगी, ऑटोमेटिक आएगी। तो ये आपके केस में क्या होने वाला है, आपको एक्सेल पे पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो डाटा आपने इसमें डाला है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ भी इनकरेक्ट होता है तो वो आपका यहाँ पर रॉन्ग एंट्री भी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ थर्ड ऑप्शन। थर्ड फीचर अगर हम देखें इसका, तो टैली प्राइम के अंदर जैसे आपने क्वार्टरली अगर आप फाइल करते हैं जीएसटी, तो उसके केस में 3B के केस में एक एरर आता था कि क्वार्टरली फाइल के केस में फाइल क्वार्टरली एक्सपोर्ट नहीं होती थी, वो आपकी मंथली बेस पे अलग अलग मंथ वाइज एक्सपोर्ट हो जाती थी। तो अब वो चीज़ यहाँ पर सॉर्ट आउट की गई है। देखिए जैसे हम गए यहाँ पर GSTR 3B के अंदर, यहाँ पर ये इस टाइप से जो भी पीरियड रहेगा आपका, आपको अभी तो यहाँ पर अनसर्टेन में कुछ एंट्रीज आ रही हैं, उसको सॉर्ट आउट आप करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करना है। मैं आपको जस्ट डेमो के लिए बता देता हूँ। ऑल्ट ई किया, ऑल्ट ई करने के बाद यहाँ पर आता है GST रिटर्न। हम GST रिटर्न में गए, यहाँ पर आपका पीरियड रहेगा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस पर्टिकुलर पीरियड का करना है आपको। मैं यहाँ जाता हूँ एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में जाने के बाद इस तरीके से स्क्रीन खुलेगी आपके पास। अब जाते हैं कॉन्फ़िगर के अंदर। कॉन्फ़िगर में यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेल या जेसन। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका लोकेशन आ जाएगी, जो आप अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फाइल नेम। फाइल नेम ये तो आपका ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहेगा हर टाइम, तो इसको चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद एक ये ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट अ सिंगल फाइल फॉर द सेट पीरियड। इसका मतलब ये है कि जो फाइल, जो पीरियड आपने सेलेक्ट किया है उस पीरियड की एक सिंगल फाइल जनरेट होगी आपकी। तो अब यहाँ पर आप इसको यस कर सकते हैं। ये यस करने के बाद आपकी सिंगल फाइल जनरेट हो जाएगी क्वार्टरली, जिससे कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल ए करना है आपको। कंट्रोल ए कर देने के बाद आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपली फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी, जिसको आप पोर्टल पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो कि टैली प्राइम अपकमिंग रिलीज में आने वाला है। अभी बीटा वर्जन है, तो जो भी रिलीज आएगा आपका उसके अंदर ये एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Ankita and Tarun, for your presentation. So now it's a time for overview of the today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you, Anga and team. So just I will intro myself. Myself is Bhagwati Bhandaria. So as you know, Tally is doing lot of things, lot of changes day-to-day basis. आज की डेट में टैली का जो सिनारियो है, जब से टैली प्राइम आया है, तो लास्ट की 30 साल की जो जर्नी हमने देखी टैली की, और इधर की 2 साल की जर्नी हम लोग देख रहे हैं, देयर इज ए फिनोमिनल चेंजेस। सो आप देख पा रहे हैं डे टू डे बेसिस में टैली के प्रोडक्ट में इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आ रही है, जिससे हमारा बिजनेस करना काफी आसान हो गया। सो आज हमने आपको 2-3 फीचर जो दिखाए, 3 फीचर जो अभी हमने दिखाया, जो रिलीज 4 बीटा हमारा जो लॉन्च हुआ है, तो रिलीज 4 बीटा में आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन ट्राई, यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम एंड यू कैन आल्सो गेट द एक्सपीरियंस कि कैसे रिलीज 4 बीटा हम यूज कर पाए। आज की डेट में हर ऑनर को, एवरी ऑनर्स
या स्टोर कीपर्स, फाइनेंस टीम या सीईओ सीएफओ या ऑपरेटर लेवल ऑफ द पीपल्स, उनको एक पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट देखनी होती थी तो उनको अंदर जाना पड़ता था। टैली के अंदर रिपोर्ट मिलती थी, लेकिन टैली के अंदर जाना होता था, पर्टिकुलर रिपोर्ट में अंदर घुस के अंदर चेक करना होता था या फेवरेटिव में देखना होता था, जो पहले से सेव करके रखते थे। लेकिन जब अभी हमारा जो डैशबोर्ड आया है, डैशबोर्ड फीचर सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बाकी सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि डैशबोर्ड आपका प्रीफिक्स डैशबोर्ड होता है, लेकिन टैली ने ऐसा किया है कि आप अपने हिसाब से अपना डैशबोर्ड डिजाइन करो, यूजर वाइज डिजाइन करो। सीईओ है, अपने लेवल पर जो रिपोर्ट उसको देखनी है अपना डैशबोर्ड बनाएगा, डायरेक्टर अपना बनाएगा, इंडिविजुअल पर्सन है उसको अपनी रिक्वायरमेंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे अपना डैशबोर्ड बनाएगा। सो डैशबोर्ड के बेनिफिट ये हो जाएंगे कि जो रिपोर्ट देखने के लिए आपको फ्यू मिनट्स देने होते थे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आज की डेट में आपको फ्यू सेकंड भी नहीं देने होंगे और आपकी रिपोर्ट आपके सामने है। दिस इज अ कोर एडवांटेज जिसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे और अपनी टाइम को सेव कर पाएंगे और फिंगर टिप से क्विक डिसीजन ले पाएंगे। आप जो भी आपको डिसीजन लेना है, यू कैन टेक द इंस्टेंट बेसिस, नो नीड टू स्पेंड मच मोर टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन टाइप पार्ट। ईमेल, यस, ईमेल के थ्रू हम हर एक डॉक्यूमेंट शेयर कर पाते थे टैली में, प्रिंट करके हम डॉक्यूमेंट शेयर कर पाते थे, लेकिन आज का समय ईमेल और प्रिंट, डेफिनेटली ईमेल प्रिंट है, लेकिन फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए लोगों को। कस्टमर को अगर आपने डिस्पैच किया तो इंस्टेंट बिल चला जाए। कस्टमर ने फोन पे पूछा मेरा लेजर स्टेटमेंट भेज दो, आपने एक क्लिक करा, लेजर स्टेटमेंट उसको मिल जाए और उसके व्हाट्सएप पे मिल जाए, विद इन ए सेकंड वो देख पावे और उसी समय वो बात कर पावे। आप कॉल पे हो, सामने सामने आपने क्लिक करा, सामने सामने उसको मिला, सामने सामने वेरीफाई हुआ, उसने पेमेंट कर दी। तो ऑल दिस सिनेरियो, आज व्हाट्सएप आ गया टैली के अंदर में, इन दिस सिनेरियो यू कैन मेक द डिसीजंस इन फ्रीक्वेंटली एंड विद इन अ सेकंड। You can communicate with your customers instant basis और उसी समय आप उससे कंफर्मेशन कर सकते हैं अकाउंट का कि यस आपने देख लिया व्हाट्सएप से, एवरीथिंग इज ओके, एनीथिंग इज चेंजेस। अगर उसने बोला हाँ ये चेंजेस करना है, यहाँ डिस्काउंट लगा है, इमीडिएट यू चेंज द लेजर, यू कैन जस्ट अगेन पुट द मैसेज, उसको इंस्टेंट मिल जाएगा, दे विल मेक द पेमेंट। So I'm talking about a single one payment scenario, but in terms of the invoice, in terms of the other things, lot of things are there that you can use. आज के डेट में इनवॉइस में एक छोटा सा रिक्वायरमेंट होता था, हमेशा हर कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती थी, कस्टमाइज करवाते थे कि प्रीवियस बैलेंस क्या है मेरा, कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस इनवॉइस में जाना चाहिए। यस, टैली रिलीज 4 बीटा में है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत चेंजेस है जो हम आपको भी दिखा भी नहीं पा रहे हैं, हमने मेजर 2-3 पॉइंट लिए। इसके अलावा एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट आती थी कि लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल में मेरे पास डेटा है, लेजर क्रिएट करना है, मैनुअली या तो जाके करो या तो टैली को कस्टमाइज करो। आज की डेट में ये सब कोई चैलेंजेस नहीं है। आपके पास एक्सेल में डेटा है, ट्रांजैक्शन है, मास्टर है, आप इंस्टेंट बेसिस पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं, आप इंस्टेंट बेसिस पे वाउचर क्रिएशन कर सकते हैं। आपके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ द वाउचर जो होंगे, फ्रैक्शन ऑफ द मिनट्स डिपेंड ऑन द डेटा, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड आप इमीडिएट कर पाएंगे, आपको उसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसमें भी अगर कुछ वाउचर आप पे इंपोर्ट नहीं है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, लाइक लेजर नहीं था, तो वंस यू क्रिएट द लेजर, तो जो पर्टिकुलर वाउचर ट्रांजैक्शन इंटर नहीं हुए, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ही बैलेंस इंटर होंगे, नहीं कि पूरी फाइल अगेन इंटर होगी और डुप्लीकेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के आपके काम को आसान किया गया है। इन द सेम सिनेरियो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन आर डूइंग ऑनलाइन सेल्स, Amazon, Mantra, Flipkart, Tata, many of the online, Ajio, like that. हर ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर आपको एक एक्सेल शीट देता है जिसको आप मैन्युअली बैठ करके इंटर करते हो टैली में, या नहीं तो आपने हमसे कस्टमाइज करवाया होगा। आज की डेट में नो नीड टू कस्टमाइज। मोस्ट ऑफ द जो सबसे ज्यादा चलने वाले ऑनलाइन सॉल्यूशंस, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनके तो एक्सेल फाइल ऑटोमेटिक वहां पर मैप्ड है, डाउनलोड कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, दैट्स ऑल, आपका काम आसान हो गया।
इट मीन्स आपका डेली का जो ट्रांजेक्शन का जो टाइम था, अगर आपके नंबर्स ऑफ 1000 ट्रांजेक्शन होते हैं अगर महीने के, तो आप ये मान के चलिए कि आपके एक आदमी का 5 दिन का टाइम ज्यादा था. नाउ नो नीड टू स्पेंड दिस टाइप ऑफ द टाइम. अब आपका काम एकदम आसान हो गया है. तो यू कैन यूटिलाइज दिस ऑल द फीचर्स इन योर टैली प्राइम रिलीज 4 बीटा. आप रिलीज 4 बीटा यूज कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस को हमें शेयर कीजिए, आप फीडबैक दीजिए. अगर आपको लगता है यहाँ पर और चेंजेस कुछ लाने चाहिए, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, डेफिनेटली आवर टीम इज वर्किंग विद यू and our tally team is also very efficiently working for you. So that's all for today's session. And जैसा कि आप जानते हैं राजलक्ष्मी every time offering some few things. अभी हमारा 2 दिन बचे हैं इस महीने के. टैली सिंगल यूजर से मल्टी यूजर, जिसको हम बोलते हैं अपग्रेड, सिल्वर टू गोल्ड, जिसका हमारा एक काफी अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर चल रहा है. That will close by the 31st of the October. अगर आपका रिक्वायरमेंट्स है कि आपको लगता है कि अभी आपको यूजर बढ़ गए हैं, आपको टैली मल्टी यूजर लेना चाहिए, जस्ट यू कैन चेक विथ योर अकाउंट मैनेजर, कॉल ऑन द माय नंबर्स दैट इज आल्सो पॉपुलेट इन योर चैट. आप कनेक्ट कीजिए और सर्विसेज और बेनिफिट ऑफर्स के बेनिफिट लीजिए और आपका बिजनेस स्मूथ रन कीजिए. That's it from my side today. Thank you very much, and have a good day. Thank you so much, sir. So if you have any queries or any questions related to the new upcoming releases, you can just connect to your key account manager for further more details. So now soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. Thank you everyone for joining today's session. So now we'll wind up this session. Thank you everyone.